Good morning, student. Welcome to you in your political science class. As you know, our chapter number 3, election and representation, is going on from our book Constitution at Work. Indian Constitution at Work, chapter number 3 is going on. In our earlier classes, we completed the parts like election system in India and what is FPTP, first post the pass system, and proportional PR, proportional representation. In our last class, I explained to you what is PR, proportional representation, and in which country this system is there. In India, proportional representation system is there for Rajya Sabha election and for the election of president and vice president. But there are some disadvantages of this system, proportional representation system. So because of this, our constitution maker started or adopted the FPTP system, first past the post system. So after that, we are going to start today our next part, that is, in this part we will read about the reservation of constituencies, free and fair elections, universal adult franchise, and right to contest. Today in this class we will complete 3 topics. First one is the reserved constituencies. As you know, in our proportional representation system, we did not opt this system, but we opted FPTP, first past the post system. What is this system? In this system, the party which gets the majority, or party which gets the maximum number of votes, that party is elected. That party wins the election. But what are the disadvantages of FPTP? इसका क्या डिसएडवांटेज है? क्योंकि बहुत सारे सोशल ग्रुप जो होते हैं इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, or the people, those whose number are less in one constituency, they are unrepresented. Their representation is not done. क्योंकि कुछ constituencies में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनका नंबर कम होता है, they are in minorities, they belong to the scheduled caste, SC और ST. लेकिन FPT सिस्टम में सिर्फ majority जो है, मेजॉरिटी वाली पार्टी ही जीतती है, माइनॉरिटीज जो ग्रुप होते हैं वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं. तो इसी कमी को दूर करने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, देयर वर ग्रेट डिबेट्स ओवर दिस इशू. बहुत सारे इसी इश्यूज़ को लेकर काफ़ी डिबेट हुए कि उन लोगों का, दोज हूर नंबर आर वेरी लेस, हाउ दे शुड बी रिप्रेजेंटेड, उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए. तो उससे पहले हमारे जो एज ब्रिटिश रूल वाज गोइंग ऑन बिफोर 1947, तो ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर दलित. ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट. ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता था कि वन कैंडिडेट is there of one minority community and all the people of the same community like Muslim or Sikh, they are giving vote to that particular candidate of their community. जो उनकी कम्युनिटी का होगा, कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है, उसी को सारे वोट देते थे. तो दिस वाज सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम. लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है और बना, और उससे पहले भी हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट बेस्ड रही काफ़ी देर तक. देयर वर 4 कास्ट, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रियास एंड शूद्रास. एंड ब्राह्मण वर द सुपीरियर क्लास एंड शूद्रा was the lowest one. And so these, in order to overcome this
दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, या ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम करने के लिए, ताकि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि दलित जो थे दे वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड, इवन नाउ रिसेंट टाइम ऑल्सो इन रूरल एरिया दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। तो इस कमी को दूर करने के लिए, ताकि दलित जो हैं, लोअर कास्ट पीपल, दे शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशल प्रोविजंस की गई हैं इन लोगों के लिए। इसको नाम दिया जाता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दिस इज नॉन एज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। So what is this reserved constituency? In this system, all the voters and in one constituency are eligible to vote. जितने भी वोटर होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, they are eligible to vote, but the candidate must belong to only a one particular community or social section from which the seat is reserved. इसका मतलब क्या है कि लोग तो सारे सेम होंगे, ऑल द पीपल विल गिव वोट, लेकिन जो पर्टिकुलर कैंडिडेट होगा वो वही उसी कम्युनिटी का होगा, उसी सोशल सेक्शन का होगा, उसी सोशल ग्रुप का होगा फॉर विच द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी देयर फॉर SC, इट कैन बी देयर फॉर ST. तो हमारे इंडिया में लोकसभा में जो रिजर्वेशन किया गया है SCs और ST के लिए, और सबसे पहले जो रिजर्वेशन है वो सीट्स रिजर्व कर दी गई. द टोटल नंबर ऑफ 84 सीट्स, 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC कम्युनिटी and 47 seats are reserved for ST. The full form of SC is scheduled caste and the full form of ST is the scheduled tribe. And this is for up to 2020. ये 2020 तक जो है वो कर दिया गया है कि 2020 तक ये फिक्स कर दिया गया है कि 84 seats will be reserved for SC community and 47 seats will be reserved for ST for 2020. तो इस तरह से हम ये 1 सितंबर जो 2012 तक पहले था, अब जैसे कि 543 टोटल सीट्स हैं लोकसभा की. यू नो कि 543 सीट्स आर रिजर्व फॉर are there in Lok Sabha and 84 are for SC and 47 are reserved for scheduled tribe. और तो ये काम who is doing this, ये वर्क कौन करता है कि ये कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व करने का कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी जो है वो कौन. All the work is done by one commission. The name of this commission is Delimitation Commission. The member of this Delimitation Commission are appointed by the President of India, and this commission, Delimitation Commission, work with the Election Commission of India. Delimitation Commission decided the constituencies reserved for SC and ST, and this commission work with the Election Commission of India. तो आफ्टर दैट देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट, एक कोटा फिक्स किया जाता है हर स्टेट में बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट कि कितने, हाउ मेनी पीपल आर देयर फॉर SC, how many people are there of SC community and how many people are there of ST in that particular state. So especially जो ट्राइबल एरियाज हैं, सम स्टेट्स आर ट्राइबल लाइक छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऐसे स्टेट्स जो हैं उनमें ST सीट्स जो हैं वो हैं दे आर 47 सीट्स. और इसके अलावा जो SC कम्युनिटीज़ हैं, SC कम्युनिटीज़ जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो 84 जो फिक्स किया गया है. तो वो कैसे किया जाता है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री.
क्योंकि एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है वो तो दैट इज स्पेशली ट्राइबल एरियाज आर देयर, लेकिन जो एससी का सेक्शंस हैं, एससी कम्युनिटीज़ हैं, पॉपुलेशन है, दैट इज सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री, evenly they are separate evenly throughout the country. These reserve constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken. तो उनको इसलिए जो रोटेशन है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की हर टाइम पे रोटेशन की जाती है, क्योंकि वो जो पूरे कंट्री में सेपरेट हुए हैं उनकी पॉपुलेशन अनइवन है हर स्टेट में, तो इसलिए उनको हर टाइम पे ईच टाइम दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी रिजर्व. सो द वर्क इज डन बाय दिस कमीशन, डीलिमिटेशन कमीशन. अगर हम और बात करें कि इफ सम सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, और देखिए इन लोकल बॉडी इलेक्शन फॉर पंचायत इलेक्शन और फॉर अर्बन एरिया, अगर हम रूरल एरिया की बात करें और अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो कि हम पहले अपनी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में कर चुके हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड द सीट्स फॉर विमेन आर रिजर्व, दैट इज़ 1/3 seats are reserved in the local body election bodies, and 1/3 seats are reserved for women for in both the rural area as well as in the urban area, दोनों जगह पे. लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में वुमेन के लिए रिजर्वेशन का बिल जो है दैट इज़ पेंडिंग, वो अभी तक पास नहीं हुआ, विच वांटेड दैट द 33% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू वुमेन. तो दिस इज अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. आवर नेक्स्ट पार्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन. अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो देखिए हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो है, this is known as election procedure, which the first requirement is that the election process should in a one democratic country should be completed or be conducted in a free and fair manner. Election should be free and fair. So that why it is important? It is important that the election system is impartial and transparent. ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और बिल्कुल ही इम्पार्शियल होने चाहिए. तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस की गई हैं? फॉर दिस डिफरेंट प्रोविजंस आर बीइंग मेड सो दैट द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. वन इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट. तो हु कैन गिव वोट? हु आर द पीपल दोज हु कैन गिव देयर वोट, हु हैव द राइट टू गिव देयर वोट, एंड who are those who can contest the election. तो हम इन दोनों बातों की, इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इन इंडिया देयर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. What is universal adult franchise? The people, those who are above one particular age, they can give their vote to elect their representative without any discrimination of caste, कलर एंड रिलीजन. जितने भी लोग हैं इंडिया के एक पर्टिकुलर एज पे होने पर वो अपनी बिना डिस्क्रिमिनेशन के राइट टू वोट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. देखिए पहले जो एज थी अप टू 1989 तक द पीपल दोज हु आर हैविंग द एज ऑफ 21 years. 1989 तक ये जो एज थी वो 21 years थी, बट from after 1989 now the age has been reduced. Now it is 18 years. During Rajiv Gandhi's time, when the Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India, so one amendment was being made. According to this amendment, the people those whose age are now 18 years, they can give their vote without any discrimination of caste, color, religion or man or women. तो without this, अगर हम
इसके साथ साथ ये बात करें कि थ्रू अडल्ट फ्रेंचाइज इट इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और बहुत लोग ये सोच रहे थे कि मैनी पीपल थॉट एंड थिंक so today that giving the right to vote to everyone, कि अगर हम सबको वोट दे देंगे irrespective of educational qualification was not right। कईयों को लगता था कि सबको राइट टू वोट देना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिना ये जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सो मैनी पीपल आर इलिटरेट, दे डोंट नो हाउ टू कास्ट देयर वोट, लेकिन बट विदाउट दिस हम कह सकते हैं कि नाउ no educational qualification is fixed for giving vote. All the people of India, those who are adult, as it is very much clear from its name, adult franchise, universal franchise. Universal franchise means right, adult franchise, those universal is for all adult, those who are above the 18, franchise is right to vote, कि जिनकी एज 18 से अबव है उनको राइट टू वोट दिया गया है। पहले 21 साल की थी, तो अब बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना कोई ऐसा नहीं कि दे शुड बी एजुकेटेड, ऑल द पीपल, ऑल द adult citizens are equal in the matter of deciding what is good for the society, for their country and for their own constituency। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या अच्छा है, उनकी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, ये सबको राइट टू वोट दिया गया है। खाली राइट टू वोट नहीं, अब उसके साथ है राइट टू कंटेस्ट। राइट टू कंटेस्ट मीन्स विच आर द पीपल हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। वो कौन लोग होंगे जिनको कंटेस्ट करने का एज ए कैंडिडेट राइट है। ऑल द सिटीजन हैव टू राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। वो आप सब लोगों को ये राइट दिया गया है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों के बन सकते हैं और इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन कुछ एक क्वालिफिकेशंस जैसे फिक्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा का इलेक्शन अगर कोई कंटेस्ट करना चाहता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना चाहता है, राज्यसभा का या स्टेट लेजिस्लेचर्स का, द पर्सन शुड बिलोंग टू इंडिया। और फॉर द पर्सनस एज शुड बी, फॉर लोकसभा इलेक्शन अगर वो लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है तो पर्सन की एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर राज्यसभा इट शुड बी 30 ईयर्स एंड फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन इट शुड बी 35। 25 years for Lok Sabha, 30 years for Rajya Sabha and 35 for President's election। और इसके साथ साथ the person who has undergone imprisonment for 2 years, 2 or more year, अगर किसी को कैद किया जाता है, इम्प्रिजनमेंट होती है 2 साल की या उससे ज़्यादा, और जब किसी ऑफेंस में वो होता है, अरेस्ट किया जाता है, तो दैट पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। दिस इज द इम्प्रिजन पर्सन, दोज हु आर इन फॉर एनी ऑफेंस फॉर 2 years और फॉर मोर देन 2 years, दे कांट कंटेस्ट इलेक्शन। उन लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट जो है वो नहीं होता। और इस तरह से, लेकिन बिसाइड दिस, इनके अलावा देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट। कोई भी क्लास की, कोई भी जेंडर मेल फीमेल की और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए कंटेस्ट इलेक्शन के लिए नहीं है। इन दिस वे हम कह सकते हैं आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज ओपन टू ऑल सिटीजन। हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो सबके लिए ओपन है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, हु कैन गिव वोट एंड हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन। दिस वाज आवर थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट which includes the election commission, who conducts election and what are the functions of election commission, electoral reform, we will do in the next class. All of you are supposed to read the chapter, complete the assignment
and learn the work sentence.